everyone, welcome back to my channel. Last time I showed you main deck area. This time I will show you poop deck area. So let's get started. So Captain, why this area called as poop deck? That's a funny question actually. So basically, why this is called the aftermost part of the ship, and it is also called poop deck because hundreds of years ago, when there were no connected toilets or anything, and the ships used to have normal cabins inside, so people used to go aft to do their pooping business. So that's why this area is called as poop deck area. They used to rig up boats outside and everything. That was hundreds of years ago. Now we have all connected toilets and hi-fi accommodations, but the name has still stuck. So इसलिए अभी भी फिर भी poop deck ही कहते हैं. Okay. So funny name, no guys? So poop deck में again you'll have is different kind of stores जो पीछे रहते हैं. एक ये paint store है. यहाँ पे we keep the paint of the ship, which last time हमने explain किया था जो corrosions और ये सब arrest करने के लिए we do normal maintenance of the ship decks and all the iron parts. तो ये सारे paint stored हैं यहाँ पे. So यहाँ पे you also have this fire sprinkler which is on top. In case of fire, we just open one valve and water will sprinkle and just douse the fire. So after this paint store, let's show you the equipments what you have on the poop deck. Again, जैसे last time हमने forward part में देखा था, यहाँ पे also you have mooring ropes. जब हम ship alongside करते हैं तो aft में भी you have to pass the mooring ropes. तो तब ये mooring ropes pass होते हैं through the same fair leads जो main deck पे भी है. यहाँ से rope pass होके it will keep the ship alongside. So be careful. ये जो different equipments आप देख रहे हो, these are known as mooring bits. This is called deadman roller. ये सारे bits है, तो ये सारे equipments mooring ropes को ही pass करने के time पे use होते हैं कि when the जो lines है वो उसको अलग अलग angle से pass करना होता है, तो ये सारे use होते हैं. So इसलिए ये सारे protrusions हैं poop deck पे. Then what you have here is the light. ये सब navigation lights है. जैसे main mast पे भी है, you will have navigation light forward main mast headlight. Then you will have the main mast headlight. Then you have side lights. ऐसे ये stern light है पीछे. So let's show you what is the propeller wash. Then what you see over here is a ETA, emergency towing arrangement कहते हैं इसे. ये पूरा you see the whole thing is connected to with this messenger line and then it is finally connected to a big chain जो अंदर ये winch में रखा हुआ है. In case of any emergency के जब ship के engine breakdown हो जाते हैं या कुछ problems आ जाए कि जिससे हम लोग अपना खुद का maneuvering power नहीं use कर सकते, so this is used to tow the vessel and pull it out. अगर कोई emergency है या कुछ भी है तो ये tow करने के लिए use होता है. ETA के बाद when you look behind here, अभी further और equipment के lockers वगैरह मिलेंगे. This is the oxygen and acetylene locker. यहाँ पर basically oxygen and acetylene bottles है. ये ship पे engine room के अंदर gas cutting और gas welding के equipments होते हैं. But the bottles because they are dangerous and they are pressurized वो अंदर store नहीं कर सकते, इसलिए ये बाहर stored होते हैं. And using pipes वो connections are taken inside the engine room. Then you have different fire hydrants also for safety. पूरा fire line पीछे तक extend होती है. You also have a extinguisher, fire extinguisher. But this reel is a fire wire. Again for emergency. Normally जब ये tanker है, ये सिर्फ tankers पे आपको मिलेगा. Tanker पे in case like when you are alongside a berth और कुछ fire हो जाए, कुछ emergency हो जाए on the terminal and the ship needs to depart fast. तो ये हम रिग करके रखते हैं नीचे. सो स्मॉल टग्स आते हैं एंड इमीडिएटली दे कैन रिग अप दिस फायर वायर एंड पुल द शिप आउट ऑफ द टर्मिनल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी. इसके लिए ये फायर वायर है. एंड अगेन अभी तुमने वहाँ पर देखा था विच वॉज द स्टारबोर्ड साइड मूरिंग रोप्स, वैसे यहाँ पर भी है. दिस इज द पोर्ट साइड मूरिंग रोप. ओके. सो गाइस, हम लोग इस वीडियो में माइक के साथ बात कर रहे हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि माइक के बिना आवाज़ नहीं आ रही है. तो प्लीज़ मुझे बताना कि ये वीडियो में प्रॉपर माइक के साथ वीडियो कैसा आया है. सेम अगेन जैसे वो तुमने स्टारबोर्ड साइड में देखा था, पोर्ट साइड में भी यू हैव मूरिंग बेड्स, डेडमैन रोलर, वेरी सिमिलर इक्विपमेंट्स ऑन दिस साइड एज वेल. एंड ये हमारा फर्नल
ship funnel. यस, शिप्स फनल। यहाँ पे शिप के एग्जॉस्ट गैसेस वगैरह सब यहाँ से बाहर निकलते हैं। Again, what you see here are different lockers. This is the chemical and lube oil storage locker. अभी right now ये चीज़ें locked है because यहाँ पे chemicals वगैरह stored है and we do not want any unauthorized personal handling chemicals and all. तो only आपको permit sign करने के बाद ही यहाँ पे आपको चाबी मिलेगी. You can open the locker, use the chemicals which are required. Behind you have some entrances also. Accommodation में enter करने के लिए दूसरे भी जैसे सिर्फ main doors जो आपने देखे थे super structure में आगे की तरफ, प्लस पीछे से भी यू कैन ऑलवेज एंटर द अकोमोडेशन इन केस ऑफ फायर विच इज इनसाइड अकोमोडेशन पीपल कैन कम आउट. तो ये एंट्रेंस है गोइंग डाउन टू द स्टीयरिंग गेयर रूम. फ्रॉम स्टीयरिंग गेयर यू कैन ऑल्सो गो टुवर्ड्स द इंजन रूम. सो डिफरेंट कनेक्शंस बिटवीन ईच एंड एवरी स्पेस ऑन बोर्ड. सो दिस फुल एरिया इज नोन एज द पूप डेक एरिया. ठीक है, यहाँ पे अभी राइट नाउ कोई पूप नहीं होता है एंड यू डोंट फाइंड एनी पूप हियर, बट जस्ट दैट जो नॉमेनक्लेचर पहले स्टक हो गया. यस ट्रू, पर जो वही है कि पहले कुछ नॉमेनक्लेचर जो स्टिक हो गया इट इज स्टिल द सेम. उसको चेंज नहीं किया गया है. सो दिस एरिया इज कंप्लीटेड. पूप डेक एरिया हो गया खत्म. नाउ आई विल शो यू सम मोर स्टोर्स जो लास्ट टाइम रह गया था, तो इस बार देखेंगे. सो इस तरफ में when you see is the another stores which is the deck store. यहाँ पे सारे डेक के इक्विपमेंट्स, स्पेयर्स वो सारे रखे जाते हैं. It's a little tight. और वर्किंग टूल्स. Yes. नॉर्मल डेक के स्पेस स्टोर्स वगैरह यहाँ पे बाय होते द वे कैप्टन, ये स्टेयर कहाँ पे जाता है? ये जाता है टू द इमरजेंसी जनरेटर रूम. कैन वी गो अप? यस ऑफ कोर्स वी कैन गो अप. चल लेट्स गो इनसाइड. सो ये है डीजल जनरेटर. इन केस ऑफ एन इमरजेंसी ये अपने आप जैसे ब्लैकआउट होता है अपने आप ये शुरू हो जाएगा. फिर ये उसके पैनल्स वगैरह हैं इन केस लाइक मतलब बराबर इसका लोड वगैरह है कि नहीं एंड एवरीथिंग. इन केस यू हैव टू टेक शोर पावर ऑल्सो. जब शिप ड्राई डॉक पे जाता है मेन जनरेटर्स यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे उसके कनेक्शंस एंड एवरीथिंग नीड टू बी मॉनिटर्ड फ्रॉम दिस पैनल. So after emergency generator room, another emergency equipment what is kept over here is the CO2 room. CO2 room में मतलब in case of fire in the engine room, then ये fixed fire fighting system है कि सब अगर fire बहुत बड़ा है and normal fire fighting team से fight अगर नहीं हो सकता है, then we call everybody outside the engine room. We close all the engine room doors और उसके बाद we release the CO2. ये रिमोट रिलीज होता है फ्रॉम अ फायर स्टेशन, बट ये मेन स्टेशन है CO2 रूम का. ये सारी बॉटल्स एक साथ रिलीज होंगी और पूरा इंजन रूम में इट विल बी रिलीज्ड, सो दैट अगर कोई टाइप का भी फायर है तो वो CO2 से एक्सटिंग्विश हो जाएगा. ओके, सो लेट्स गो नाउ. ये तो मैं भी पहली बार देख रही हूँ गाइस. ठीक है, वीडियो के लिए मैंने पहले यहाँ पे वेंटिलेशन स्टार्ट कर दिया था, बट नॉर्मली बिफोर एंटरिंग दिस एरिया वी हैव टू एंश्योर दैट यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, बिकॉज इन केस सपोज गॉड फॉरबिड के कोई CO2 गैस रिलीज हो रही है तो देन देयर विल नॉट बी सफिशिएंट ऑक्सीजन इनसाइड दिस रूम. बट जस्ट फॉर दिस सेक ऑफ दिस वीडियो मैंने पहले ही वो सब ऑन करके एंड मेक श्योर दैट प्रॉपर वेंटिलेशन हो इस रूम में. तो दिस इज द इमरजेंसी एस्केप ट्रंक. नीचे ये पूरा दिस गोज ऑल द वे टिल द इंजन रूम के फ्लोर बॉटम के तक. इन केस के वहाँ पे किसी का कुछ हो जाता है फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और एनीथिंग, उसको अगर इवैक्यूएट करना पड़े फ्रॉम दी बॉटम प्लेटफॉर्म, तो वो पर्सन को इवैक्यूएट करके सीधा उसको यहाँ पे डेक पे ला सकते हैं. वी डोंट हैव टू पास थ्रू डिफरेंट स्टेयरवेज एंड अकोमोडेशन ऑल दिस एरिया. सीधा यू कैन ब्रिंग हिम आउट. तो ये इमरजेंसी एस्केप है. इंजन रूम में कनेक्ट होता है. करेक्ट, बट इंजन रूम बॉटम प्लेटफॉर्म पे ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी वी यूज दिस एरिया. ये नॉर्मल में नोबडी यूजेस दिस टू एंटर और कम आउट ऑफ द इंजन. सो गाइज
आज का वीडियो यहाँ पे ही कंप्लीट हुआ, पूप डेक एरिया। और आपको कोई और डिटेल वीडियो चाहिए जैसे अभी दिखाया पूप डेक में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए बाय बाय।